Hi, you guys. I hope you all are doing fine. This is Rishika, and welcome to another video of my YouTube channel. So, in today's video, we are going to talk about SQE1 and SQE2 because the last video which I posted about my law office and my work experience, after that video, I have received a lot of queries from all of you guys. So I've written down the question with me on my Mac, and now I'm going to answer all of those questions. So first and foremost, let me start from the very beginning. Is the SQE exam, what is it exactly? So if you want to become a solicitor in the UK, you have to pass through the SQE1 exam and SQE2 exam. You have to clear all the two exams successfully, and you should have a 2 years of work experience of here in the UK, and then you'll apply for the jobs, and then you will be able to see some positive response. Nahi to otherwise be you'll receive emails that will be filled by the word unfortunately, 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 and we don't want that to happen. So yeah, now from you people from India are really concerned about the job opportunities, the exam, and some of you are even also preparing from India from the SQE, which is really good. It shows that you have direction, and you know that okay, ab aage aisa karna hai, to what step shall I take now? So that's a great deal. Because students here, after completing their LLM, they are not working in a law firm or something. They are working in they are doing other jobs, like they're working in KFC, or they are doing Uber delivery and all of those things. Yeah. So it's good. According to the SRA, that is Solicitor Regulations Authority, for the SQE, it is not necessary that you have to do your graduation or degree in law. So if you have a degree or equivalent, you are very well eligible to give the SQE exam. So you have to pass the both the stages, like that is the SQE1 and SQE2. And SQE1 is focused on the legal theoretical knowledge, and SQE2 compromises of the practical knowledge. उसके साथ साथ you should have a 2 years of work experience, and you have to meet the character and suitability requirements. So now what people do here is they start to work as a paralegal. They start to apply in law firms, and they start working as a paralegal or document reviewer, जिसकी वजह से क्या होता है, उनका 2 साल का एक्सपीरियंस बिल्डअप होता है यूके आके. ठीक है, तो वो क्या करते हैं, साथ साथ अपने SQE1 की थ्योरेटिकल पढ़ाई करना शुरू कर देते हैं, सो दैट उनको थ्योरी के बारे में नॉलेज होती रहे, और प्रैक्टिकल तो वो कर ही रहे होते हैं लॉ फर्म्स में, देख ही रहे होते हैं सॉलिसिटर्स को करते हुए. तो इसीलिए जो लोग क्या करते हैं कि व्हाट पीपल डू, दे गिव द SQE1 एग्जाम आफ्टर देयर स्टडीज, आफ्टर दे प्रिपेयर फॉर द SQE1, एंड देन दे वर्क इन अ फर्म. या तो वो पहले काम कर लेंगे कॉलेज यूनी के साथ साथ, या फिर बाद में काम करेंगे SQE1 देने के बाद 2 साल काम करेंगे, ताकि वो SQE2 एग्जाम इजीली निकाल पाए, बिकॉज SQE2 एग्जाम इज बेस्ड ऑन द प्रैक्टिकल लीगल नॉलेज दैट यू गेन, राइट. सो नाउ अब अगर हम बात करें कि कोर्सेज की, कि आप SQE1 की कोचिंग कोर्सेज कहाँ से लेंगे, तो अब मेरे को यहाँ पे 9 मंथ्स हो चुके हैं, और मेरे को ऐसा यहाँ पे कोई कोचिंग नहीं दिखी कि आप वहाँ पे जाओ पढ़ो, है ना. और जैसे इंडिया में होती है जुडिशरी की कोचिंग एंड ऑल, तो ऐसा वहाँ कोचिंग्स नहीं है यहाँ पे. पर यहाँ पे क्या है कि यूनिवर्सिटीज़ कोर्सेज ऑफर करती हैं जो आप टेकअप कर सकते हैं, जो SQE की प्रिपरेशंस कराते हैं. तो ये भी मेरे पास एक क्वेश्चन था, दैट आई शैल आई ऑप्ट फॉर दिस कोर्स जिसमें SQE की प्रिपरेशन भी कराई जाए. सो माई आंसर टू दैट इज़ अ बिग येस येस येस, बिकॉज फिर आपके साथ साथ SQE1 की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी हो जाएंगी, और आपका कोर्स भी हो जाएगा इन मास्टर्स, राइट. सो दैट इज़ अ विन विन सिचुएशन. और आप करने भी तो हम यही आ रहे हैं ना, अपना लीगल फील्ड में करियर बिल्डअप करने. सो इसीलिए अगर कोई ऐसा कोर्स है जो कि बहुत है, आप इंडिया में इंडिया से अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप रिसर्च करो, यू विल गेट टू नो दैट देयर आर मैनी कोर्सेज एट द यूनिवर्सिटीज ऑफर which teaches you about, which prepares you about the SQE examination. Now
the university in which I wanted to go is the University of Law, because you know the University of Law ऑफर करती है ऐसे कोर्सेज इन विच दे प्रिपेयर अस फॉर SQE1 SQE2 whatever. बट उसमें एक चीज़ बहुत अच्छी थी कि अगर कोर्स कंप्लीशन के बाद अगर यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ आपकी प्लेसमेंट नहीं लगवा पाती है तो वो आपकी आधी फीस आपको वापस कर देती है, या £2000 वापस कर देती है. तो ऐसा कुछ था, मेरे को भी ध्यान नहीं आ रहा है. सो वो आप चेक करना, एंड यू शुड ऑप्ट फॉर कोर्सेज विच विल प्रिपेयर यू फॉर द एग्जाम्स. ठीक है. एंड नाउ अभी एक का क्वेरी ये था कि कैन आई गेट अ जॉब फ्रॉम यू और विद यू. तो ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि मैं भी किसी के साथ काम कर रही हूँ. सो या यू हैव टू मेक योर ओन CV, और आपको खुद जॉब्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, और देन यू विल सी. ठीक है. Now one question is, I want to come for masters from London. How can I apply for law firms? law firm में आप अप्लाई करोगे बैरिस्टर सॉलिसिटर की पोस्ट के लिए नहीं, आप अप्लाई करोगे पैरालीगल के लिए, डॉक्यूमेंट रिव्यूअर के लिए, रिसेप्शनिस्ट के लिए. इन सारी जॉब प्रोफाइल्स के लिए आप अप्लाई करोगे लॉ फर्म्स में, एंड देन यू विल गेट थ्रू द लॉ फर्म. और अगर आप लॉ फर्म में घुस गए तो फिर आप ग्रेजुअली चीज़ें सीखते जाओगे और आगे बढ़ते जाओगे. इनफैक्ट यहाँ पे लॉ फर्म्स ऐसी भी होती हैं जो स्पॉन्सर करती हैं SQE1 और SQE2, और वही आपको प्रिपेयर कराते हैं, वही आपसे एग्ज़ाम दिलवाते हैं. लॉ फर्म्स में यहाँ पे वेकेशन स्कीम भी होती है. जब यूनिवर्सिटी की वेकेशन पड़ती है तो वो फिर आपको लॉ फर्म्स बुलाते हैं, आपको काम सिखाते हैं, अपने लॉ फर्म के बारे में बताते हैं, और उस टाइम पे वो टेस्ट करते हैं कैंडिडेट्स को कि क्या ये हमारे लिए अच्छा कैंडिडेट है या नहीं. तो उस टाइम भी वो आपको सिलेक्ट कर लेते हैं अगर आप उन्हें पसंद आते हो फॉर जॉब अपॉर्चुनिटीज़. तो वो भी एक अच्छा वे है. सो देयर आर मैनी वेज टू गेट थ्रू द लॉ फर्म, बट आई डोंट नो, किस्मत की भी बात होती है, और अप्लाई भी आपको बहुत सारी जगह करना पड़ता है. राइट. नाउ अब एक वेबसाइट है दैट इज़ SRA, सॉलिसिटर्स रेगुलेशन अथॉरिटी. उस वेबसाइट पे सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है फॉर द SQE एग्ज़ाम्स. सो यू कैन विजिट दैट वेबसाइट एंड सी. एंड ऑल्सो उस वेबसाइट पे उन्होंने सॉलिसिटर एग्ज़ाम के ट्रेनिंग के लिए भी कोर्सेज बताए हुए हैं, ट्यूटर्स बताए हुए हैं जो आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग देंगे, ऑनलाइन सारा मटेरियल प्रिपेयर करेंगे. बट हाँ, वहाँ पे मुझे एक दो कोर्सेज जितने भी मैं देख पाई उनमें से एक दो मुझे दिखे जो ऑफलाइन भी आपको प्रिपरेशन कराएंगे. बट या द फीस फॉर दैट वाज अराउंड £1,000 or £2,000. तो वो आप अपने बजट के हिसाब से देख सकते हो कि आपने वो करना है या वो नहीं टेकअप करना. नाउ द अदर क्वेरीज दैट आई हैव, do you think it's feasible to prepare for the SQE exam alongside the core LLM coursework? So yes, it is feasible and it can be done because here in London the classes do not happen every day. I mean like जो मेरा कोर्स है उसकी क्लासेस तो रोज़ नहीं होती है, हफ्ते में 2 दिन होती हैं. So even if your classes are 3 to 4 or 2 days, then the rest of the days you are free. So you can prepare for the SQE exam alongside your LLM course. So yes, that can be done. It's a feasible option. Okay, so could you share details about where you stayed during your studies? Did you opt for private accommodation or university accommodation? Okay, so मैंने अपने लिए घर सेलेक्ट करा था रहने के लिए रूम रेंट पे, वो रूम था जो मेरी यूनिवर्सिटी से पास में था, ताकि मेरे को यूनिवर्सिटी आने जाने में दिक्कत ना हो और मैं आसानी से चली जाऊँ. सो आपने जो अकोमोडेशन देखनी है, मेक श्योर इट इज़ नियर टू योर यूनिवर्सिटी सो दैट इट इज़ ईजी फॉर यू टू ट्रैवल. ऑल्सो इधर लाइब्रेरीज यूनिवर्सिटीज़ की भी आप एक्सेस कर सकते हो. तो मान लो अगर आप SQ की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जिस दिन आपकी छुट्टी यूनी की तब भी आप यूनी जा सकते हो, लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ सकते हो. क्योंकि घर पे ऑब्वियसली पढ़ने का इन्वायरमेंट थोड़ा नहीं बन पाता है, क्योंकि टेबल चेयर की आदत होती है कुछ लोगों को, और पढ़ाई वाला इन्वायरमेंट नहीं हो पाता. बहुत सारे लोग भी साथ में रहते हैं एक अकोमोडेशन में, सो नहीं पढ़ाई हो पाती है ना. तो स्टडी इन्वायरमेंट के लिए आप लाइब्रेरी भी जा सकते हो. तो दैट्स अ पॉइंट दैट यू शुड टेक केयर दैट यूनिवर्सिटी के पास ही आप अपना अकोमोडेशन देखो. तो मैं भी अभी भी वहीं रह रही हूँ क्योंकि अभी मेरी यूनिवर्सिटी कोर्स चल ही रहा है.
सो आई डिड नॉट ऑप्ट फॉर यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन. मैंने प्राइवेट अकोमोडेशन ही देखा था क्योंकि मुझे वही ज़्यादा फीसेबल लगा. नाउ अब देर वॉज अ क्वेरी कि आप क्वींस मैरी किंग्स कॉलेज के लिए क्यों नहीं आप गए, दिस दैट. सो वॉज देर एनी स्पेसिफिक रीज़न यू डिडंट चूज देम? Because it was an LLM for me, and obviously the budget was and not an issue, but yeah, budget भी ध्यान में रखना था. So मैंने क्वींस मैरी और किंग्स कॉलेज वगैरह की फ़ीस मेरे को बहुत ज़्यादा लगी थी. ऐसा लगा था कि नहीं, मुझे इतने पैसे देने की ज़रूरत नहीं है जब मैं वही कोर्स नॉर्मल यूनिवर्सिटी से भी कर सकती हूँ. तो फिर मैंने इसीलिए चूज़ नहीं करी वो यूनिवर्सिटीज़. ये रसल ग्रुप मैंने चूज़ नहीं करा. नाउ ओके, सो यही मोटी मोटी सारी क्वेरीज थी और सारी मैंने ऑलमोस्ट क्लियर कर ही दी हैं. ओके, एंड या सो दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो. सो मैंने ट्राई करा कि जो भी मेरे पास क्वेरीज आई हैं मैंने उन सारी क्वेरीज के आंसर दिए हैं. एंड डू चेक द वेबसाइट विच आई मेंशन, दैट इज़ द SRA Solicitor Regulation Authority. And I will also put the link of the website in my description box, so do check it out. And I hope you find the way through your careers. And that is all from my side. Bye bye, take care, see you soon in another video.